अब होगा। नमस्कार, आज हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर B.R. मनी. He was heading the team of Ayodhya excavations in the disputed site, and which became the basis of the judgment of the High Court, Allahabad High Court, as well as the Supreme Court. This is a very important document which Professor Mani, along with his team, did the excavations, and then they came to a conclusion that there indeed was some temple beneath the existing mosque. So we all know the Ram Janmabhoomi matter started long back in 1885, and then it started basically in 1535 when Babur came to India. He built a mosque there, and Hindus believed that there was a temple beneath it, but the Muslims said that they built the mosque, Babur built the mosque on a plain land. So, but to come to a conclusion, there was actually presidential reference which was made to the Supreme Court that whether there is a temple beneath it or not. The president asked the Supreme Court. So the Supreme Court didn't answer that question, but they referred it to the Allahabad High Court where the matter was going on. So the Allahabad High Court then later ordered the to the ASI, to the Archaeological Survey of India, to do the excavations and come to a conclusion. So we'll hear from Mr. Mani. Mr. Mani, when did you get the order from the High Court to do the excavation? I think this order was issued by the Allahabad High Court Lucknow bench on the 5th of March 2003. So then you went ahead. So this is a very interesting, Professor Mani, आप इसमें जो this is एक धरती के अंदर जाके और सारा खुदाई करना, and how do you manage, like इतनी मिट्टी आपको कैसे पता लगता है कि कहाँ खोदें, कुछ उसमें कुछ और डिफेक्ट ना आ जाए या कुछ खुदाई में कुछ डिस्टर्ब ना हो जाए, तो आप उसके लिए पहले क्या ग्राउंड वर्क करते हैं कि you go to the exact position and don't then destroy the something existing there? In fact, for this particular site of disputed site at there, it is 2.77 acres of area, and the central part where the Ramlila was installed after the demolition of the Babri Mosque. 10 feet around that tent was not allowed to be excavated. But other areas, the High Court asked us to excavate and submit our report suggesting what is there below the levels of below the mosque, because mosque was not in existence. Only some parts of the foundation, etc., that was remaining. Some floors of the mosque they were remaining, and it had taken a shape of mound. So we were supposed to excavate that particular site, and that is why, as per archaeological principles, we divided the entire site into 3-4 different sectors, and then we laid out our trenches. 90 trenches we excavated. How do you dig? What are the tools which you use? So the trenches are marked from north to south, east to west, and there is a fixed principle how to name the particular trenches, like A, B, C, D, and 1, 2, 3, 4, like that. So, as per the norms, the existing norms, which is internationally known in all the sites, we took up the laying out of trenches, and then we, according to that, we utilized the
latest equipments like total station and theodolites etc. for measuring the What is area of the that? trench. Just tell the layman what is that equipment? It's an equipment which measures the area because it may be undulating. But if you have to measure a 5-meter area, maybe it is undulating. If you take this with the help of tape, it may not come exactly. And this measurement is done in order to know finally we are going to get some structures, some antiquities down below. So जो भी उसमें से निकल के आएगा उसकी 3D रिकॉर्डिंग करते हैं. And that 3D recording, if your measurement is incorrect, then you cannot properly record. तो उसके लिए हम 3D रिकॉर्डिंग के लिए कि हम कल को ये जानना चाहें कि ये ट्रेंच इस ट्रेंच में हमको ये पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जो मिला था वो किसी स्ट्रक्चर के साथ अटैच है या नहीं है या किसी फ्लोर के साथ अटैच है कि नहीं है. तो हम अगर उसका मेजरमेंट ऊपर से लेआउट का सही रखेंगे तो नीचे तक हम सही रख सकते. तो फिर उससे हाउ डू यू डिग इट? टूल जो यूज करते हैं normal tools we use small pickaxes, and for throwing the earth we use those powder etc. And तसले हाँ, so with तो उस मिट्टी जो निकलती है उसमें फिर then you also yeah. ढूंढते हो कि इसमें क्या First है? we search it at the digging site itself, and we find out we try to find if there is anything left, any potsherd or any antiquity. Sometimes the antiquity may be very small. छानते हुए So we send the same earth for seeding, and then we take out. Sometimes we find some smaller blue beads and such things while seeding. So अभी किस स्टेज पे आपको मिलना शुरू हो गया था जब आपने when you were digging? तो what stage कितने की बाद आपको मिलना शुरू हुआ? कुछ भी जैसे जो नहीं वो तो बस ऊपर से ही ऊपर से जैसे क्या? लोगों ने डोनेटरी इंस्क्रिप्शंस लगा रखे थे कि फलाने वहाँ से आए उन्होंने यहाँ सीढ़ी बनवा दी या यहाँ अभी के प्रेजेंट मंथ. हाँ 150 साल के अंदर. अच्छा तो उसको वो मिलने शुरू हुए. उसके बाद फिर नीचे और 1935-34 की ब्रिक्स मिली. फिर और नीचे गए तो we started getting Mughal remains. तो सेम लैंड पे नीचे गया एक ही लैंड पे जैसे कोई जो डिफरेंट. We had 90 trenches. 90 अच्छा अलग अलग जो 5-5 मीटर की मैं बता रहा हूँ. We had 90 trenches spread over the area of 2.77 acres of land. And that was the disputed area. तो उस डिस्प्यूटेड एरिया में जहाँ पहले कभी एक्सकेवेशन नहीं, जो भी पिछले एक्सकेवेशन हुए तो वो बाहर के साइड में. पीछे कोई चबूतरा भी मिला? एक राम चबूतरा है जिसका रेफरेंस आता है 1766-67 में. एक ऑस्ट्रियन ट्रैवलर था जोसेफ टाइफेंसलर, वो यहाँ आया था. तो उसने कहा था कि यहाँ पे हिंदू लोग एक चबूतरा है वहाँ पर पूजा करते हैं, खासतौर से रामनवमी के दिन वहाँ पूजा करते हैं और वो ये मानते हैं कि इस स्थान पर भगवान राम का जन्म हुआ. तो वो कहाँ मिला? वो जहाँ राम चबूतरा डिमोलिश हो गया जो प्रेजेंट डे था 92 तक 1992 जहाँ पे था वो जब हटाया वो तो जा चुका था. उस जगह हमने एक्सप्लोर किया तो वहीं नीचे किस मार्बल का था क्या था? नहीं वो तो ब्रिक वर्क का था. उसके ऊपर बहुत खूबसूरत प्लास्टर किया हुआ था और ज़्यादा चौड़ा या बड़ा भी नहीं था. वो कोई 1.5 मीटर 2 मीटर लंबा और 1.5 मीटर चौड़ा और कोई 6-7 इंच ऊंचा.
तो इसमें जो कह रहे हैं कि बोन्स भी नीचे मिली और बोन्स को आपने नहीं फेंक दिया, नहीं फेंका नहीं, सारा वहाँ रखा हुआ है, सारा रखा है? सारा अच्छा, रखा हुआ है। अच्छा। और इसमें हमने कोर्ट से ये भी कहा हम्म, कि हमारे पास आर्कियोलॉजिस्ट नहीं है, हम्म, हमें बोन्स की स्टडी के लिए किसी इंस्टीट्यूशन को, जैसे एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे है या डेक्कन कॉलेज है, जहाँ इनके लोग अवेलेबल हैं जो बॉटनी आर्कियोलॉजी करते हैं, हम्म, उनसे कांटेक्ट करके हम बोन्स की स्टडी करा सकते हैं। ये भी एक एलिगेशन था कि ये लोग बोन्स की स्टडी नहीं करते। स्टडी नहीं करवा रहे और फेंक रहे हैं। हाँ, फेंकना तो खैर कोई बिल्कुल नहीं फेंका, जो भी था मिट्टी, सिर्फ हम लोगों ने मिट्टी ही हटाया था। मिट्टी में जो कुछ मिला, जो भी बोन्स थी, वो सब वहाँ पर पैकेट्स बना के सैकड़ों पैकेट, बड़े बड़े पैकेट्स अभी कहाँ है वो? वहीं रखे हुए हैं। कहाँ? वहाँ जो साइड अयोध्या के, में? हाँ अयोध्या में साइड के ईस्ट में मानस भवन है। मानस भवन। वहाँ 3 कमरों में सारी एंटिक्विटी, सारा पॉटरी और ये बोन्स ये सब वहीं रखे। और कोई शिवलिंग वगैरह भी मिली? शिवलिंग हम लोग को तब नहीं मिले थे, लेकिन जो अभी मई में अभी जो काम हुआ है उसमें शिवलिंग मिला है। तो उसको भी उसमें तो मतलब उस उसको समय- एज इट इज नहीं रख सकते कि नीचे का जो मिला है नहीं, प्राचीन? वो तो जो मिट्टी हटा रहे थे उसमें मिला है ये ना, तो राउंड वो का। म्यूजियम में वो लोग रखेंगे, अच्छा। वो चीज़ें म्यूजियम में डिस्प्ले की जाएंगी। तो अभी तो इसके लिए जो बोन्स वाली बात थी, वो हम लोगों ने डेक्कन कॉलेज से और एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे से बात किया, और उन लोगों ने ये कहा कि हमें 6 महीने चाहिए बोन्स की स्टडी के लिए, फिर हम इसकी रिपोर्ट देते हैं। तो हमने कोर्ट को बता दिया कि 6 महीने, वो कोर्ट को रेलेवेंट नहीं था। कोर्ट ने कहा कि वो इतना उसका रेलेवेंट नहीं है, हाँ। और अगर उसकी ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में उसको करवाएंगे, आप इसको प्रिजर्व करके रखिए। और आज भी वो आज तक प्रिजर्व कर रखा हुआ है। हर 15 दिन पे लखनऊ ASI के लखनऊ सर्किल से 2 केमिस्ट जाते हैं, एक आर्कियोलॉजिस्ट जाता है, और वहाँ परमिशन लेकर के जो ऑथराइज पर्सन है वो ताला खोला जाता है, वो खोल करके देखते हैं कि सब चीज़ ठीक ठाक है कि नहीं, तो वो प्रोसेस अभी भी चल रहा है। अच्छा, तो अब ये बताइए कि अब जो बाबर के टाइम में क्या क्या मिला, जो बाबर के टाइम अभी उसके नीचे तक कुछ मिला, जब 1500 कुछ में 35 में बाबर मस्जिद के बनी? समय का डायरेक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन अकबर के कॉइन्स वगैरह हैं। अकबर उसके बाद हाँ, कॉइन्स हैं। अकबर के कॉइन्स हैं। अकबर 20-30 साल बाद आ गया था बाबर, तो अकबर के कॉइन्स हैं, और फिर लेट मुगल्स के भी कॉइन्स हैं। कोर्ट में ये भी बात चली कि ये शायद बाबर ने नहीं बनाई है, अकबर ने बनाई है मस्जिद, ऐसे भी कुछ इसमें दिखता है आपको? नहीं, ये तो जबरदस्ती वाली बात है, क्योंकि सारा एविडेंस तो यही कहता है मीर बाकी ने बनवाया, जो कि बाबर का सिपह सलार था। पर फिर अकबर के कॉइन्स नीचे कैसे मिले होंगे इसके? नहीं, मुगल लेवल से Period, मिले अच्छा। हैं। हाँ, तो ये होता क्या है कि एक के बाद एक लेयर्स में नीचे कैसे चले जाता है सब कुछ? नहीं, How वो तो it happens? जैसे अभी ये हाँ। पूरी बिल्डिंग कोलैप्स करता है, ठीक है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें मिलेंगी। अब अगर कोई ट्रेंड आर्कियोलॉजिस्ट होगा तो वो कहेगा कि ये 20th सेंचुरी की चीज़ें नहीं हैं, ये अर्ली चीज़ें हैं, लेकिन मिल रही हैं 20th सेंचुरी में। तो क्योंकि ये तो जो जब गिरेगा तो पूरा एक लेवल बन जाएगा ना मिट्टी के डिपॉजिट का, जो मलबा जितना कुछ है, लेकिन चीज़ें तो सब वही रहेंगी। तो इसी तरह से एक एक लेवल, एक एक लेयर को एक्सप्लोरेट करते जाते हैं, और इसी तरह से नीचे जाते हैं। और विक्रमादित्य के टाइम में क्या क्या मिला? मतलब गुप्त काल में अगर हम देखें तो गुप्त काल की पॉटरी है, गुप्त काल के स्ट्रक्चर्स हैं। इसमें चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का एक सिक्का है, वो मैं दिखाना चाहूँगा। तो इसका मतलब एस्टैब्लिश हुआ कि ये विक्रमादित्य के टाइम से था नीचे कुछ? नहीं, विक्रमादित्य नहीं, विक्रमादित्य तो बहुत बाद में आया। अच्छा, उससे पहले उस विक्रमादित्य से बहुत पहले की चीज़ें हैं। अच्छा। हाँ, तो ये देखिए, ये सारे कॉइन्स जो है ना, ये अयोध्या के कॉइन्स हैं, ये सब।
दिखाओ तो। कुछ इसमें ये कॉइन्स किस मेटल के हैं, कॉपर के? कॉपर, कॉपर के। नॉर्मली कॉपर के कॉइन्स हैं। कुछ ये गोल्ड का भी coins- मिला क्या कुछ? गोल्ड के छोटे मोटे कुछ ऑब्जेक्ट्स मिले, कोई ऐसा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट नहीं। कॉइन जैसे कॉपर के। ये सब कॉपर के coins। हम्म, ये अकबर के coin। अकबर के। अब ये तो एक्चुअली ज़ेरॉक्स है ना, इसलिए इसमें इतनी क्लैरिटी नहीं है। कॉइन्स में ये अर्ली कॉइन्स हैं अच्छा। जो अयोध्या के रूलर्स थे, हम्म, उनके कॉइन्स हैं। और एक ये देखिए, ये अर्ली ब्राह्मी में सील है हम्म, और ये ग्लास पे। ग्लास। हाँ, ग्लास। ग्लास की सील है इतनी बड़ी, अच्छा। और इस पे 2 लेटर्स हैं, शी और धे, शी धे। अब इसका मतलब क्या मतलब है, मतलब क्लियर नहीं होता। कौन सी लैंग्वेज में है? ये स्क्रिप्ट जो है ब्राह्मी स्क्रिप्ट ब्राह्मी है स्क्रिप्ट। और करीब 3rd सेंचुरी BC की। अच्छा। तो लास्ट कहाँ तक आपने खुदाई करी? लास्ट इस लेवल से भी नीचे गए। हाँ, किस लेवल तक करी? मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक्चुअली वॉल्यूम 2 है इसका। अब जैसे आपसे मैं बता रहा था ना कि डोनेटिव वो जो वो थे स्लैब्स। अच्छा। ये इसमें ऊपर ही ऊपर मिल गए थे। क्लीनिंग करने में निकल आए। ठीक है। फिर उसके बाद धीरे धीरे हम नीचे जाना शुरू किए और नीचे के लेवल्स आने लगे। कोई ग्रेव्स भी मिले क्या? ग्रेव्स में भी, अच्छा। उनके बारे में मैं बताता हूँ। ये जैसे वेस्टर्न एरिया में ट्रेंचेस हैं, और इसमें आप देखिए ये सब उसके जंगला। ये सीढ़ी आपने बनाई है नीचे नहीं, जाने? ये तो मीलों की बनी लोहे की सीढ़ी है। मतलब हम आपने बनाई हुई है? नहीं, पहले की बनी हुई? ये पहले की बनी है। ये पूरा लोहे का वो बना है, चारों तरफ घेर के रखा था ना। बीच में ये पिलर्स हैं जिसमें CCTV कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। ये तो साइड पे ही वो है। ये पीछे के साइड में हम लोगों ने जो मलबा था उसको क्लियर किया वहाँ से। लेकिन क्योंकि हमको वहाँ भी ट्रेंच लेनी थी, ये हमने ट्रेंच ली पीछे के साइड में। मस्जिद जहाँ थी उसके बैक साइड में, वेस्टर्न साइड में सीधा थोड़ा डाउन रिफ्लेक्शन आ रही होगी। ओके, आगे की तरफ गिराओ थोड़ा सा। हाँ, ये थोड़ा एक ब्रेक देना है। मेकशिफ्ट टेम्पल ऊपर और टेंट वाला। तो ये हाँ। टेंट वाला टेम्पल लगा रहा, और ये भी था वो तो अभी तक था। हाँ, कोर्ट का ऑर्डर था कि वर्शिप में उससे 10 फीट तक आते रहे। वो तो खुदाई नथिंग करते वाज हैं। डिस्टर्ब बाय यू, No. और वो वहाँ पूजा होती रही। हाँ। और ये देखिए जो नीचे के लेवल्स में हम लोगों ने वो स्क्वेट किया, तो ये फ्लोर है। ये जो सफ़ेद दिख रही है ये फ्लोर है। ये मिट्टी हटाने के बाद फ्लोर आई, और फ्लोर के ऊपर ये पिलर बेस दिख रहा है ना। इस तरह के पिलर बेसेस वहाँ थे। थे। तो कितने पिलर्स निकले पीछे से? 50 हम लोगों ने एक्सपोज किए थे। अच्छा, कसौटी पिलर्स नहीं, पिलर नहीं थे, पिलर नहीं, बेस थे। बेस थे। हाँ, जैसे ये ये है, है, हाँ। ये सब बेस है, ठीक है। ये सब बेस है। तो पिलर्स पहले ही जो मस्जिद में पिलर्स थे। तो तभी हट गए, हाँ, और 12 पिलर्स तो वहाँ मौजूद थे जो मस्जिद में इस्तेमाल कर दिए गए। और वो जो विष्णु इंस्क्रिप्शन, ये जो आप राम चबूतरा की बात कर रहे अच्छा, हैं। ये जो नीचे का है, हाँ, ये मार्बल ही तो है। मार्बल नहीं है, पर बड़ा ये चमक रहा है प्लास्टर, white। प्लास्टर, अच्छा, लाइम प्लास्टर। लाइम प्लास्टर नीचे। हाँ, ये मेन चबूतरा है जिसके पीछे इतना विवाद था कि नीचे ही था। ये नीचे पाएगा कितनी लेयर पर? ये है ना, ये ग्राउंड लेवल है हाँ। ऊपर का, और वहाँ से करीब 2 मीटर नीचे कितने ये है कौन से जो- साल में जो- होगा ये?
जो 1765 में 1760 टाइफेंसलर ने इसको देखा देखा था। ये वो वाला है। तो इसका मतलब जब बाबर ने बनाया 15 कुछ में कह रहे हैं, तो उसका तो कोई मस्जिद के बारे में नहीं लिखा हुआ बुक में, टाइप में नहीं लिखा है उसमें लिखा है कि हाँ मस्जिद की। मस्जिद थी, तो वो लेकिन चबूतरा- उसमें ये लिखा है कि हिंदू लोग यहाँ पूजा करते थे, अच्छा। क्योंकि वो मंदिर तोड़ के जो मस्जिद बन गई तो उसके बाद मस्जिद तो मुस्लिम्स की हो गई, हाँ, लेकिन हिंदू लोग यहाँ पूजा करते थे। और ये शायद हो सकता है, संभव है कि अकबर ने ये जगह हिंदुओं को दे दी, दे दी। क्योंकि बाबर। अकबर थोड़ा liberal ये था। देखो कितना, दिस इज द चबूतरा विच इज फाउंड बीनीथ द व्हेन एक्सकवेशन में, चबूतरा राम चबूतरा जिसकी सारे जिस पे विवाद है, ये नीचे पाया गया है नहीं, एज इट इज। विवाद तो बाद में है, बट हाँ, पर ये चबूतरा नीचे है जो दैट प्रूव्स दैट दिस वाज अ टेंपल दैट हिंदूज यूज्ड टू। ये कोर्ट ने भी माना है कि हिंदूज लगातार वहाँ पूजा करते रहे हैं। इसीलिए इसकी चरित्र भी कई फोटो इसको और इम्पोर्टेंट है, मैं इसमें दिखाना चाहता हूँ। जैसे ये मस्जिद की फाउंडेशन वॉल है, ऐसे मस्जिद की फाउंडेशन वॉल है जिसके अंदर ये मकर प्रणाल रीयूज किया गया। हाँ अच्छा, बेंड करें तो आगे की तरफ। ठीक है। यस यस। थोड़ा मकर प्रणाल के बारे में बताएं। मकर प्रणाल का ये है कि जब पानी निकलने के लिए मंदिरों में पानी ना इकट्ठा हो तो शिवलिंग पे जो चढ़ाते हैं शायद, वो पानी और बरसात का भी पानी वो इकट्ठा ना हो, इसके लिए ये बड़ी बड़ी नालियाँ निकाल दी जाती हैं। तो वो नालियों को इतने खूबसूरत ढंग से निकाला जाता है कि जो मकर का या मगरमच्छ का शेप दे करके वो करते हैं, तो ये वही मकर प्रणाल बना करके अच्छा वो रहा होगा मंदिर में, जिसको जब वो टूट गया तो उसको लोगों ने फाउंडेशन में इस्तेमाल कर जी जी। ये ये प्लेट हाँ, ये इस तरह के जो वो होते हैं आर्किटेक्चरल मेंबर्स, वो सिर्फ नॉर्थ इंडियन टेम्पल्स में इस्तेमाल करते हैं। ये तो दूसरी जगह है कंपेरिजन के लिए। ये मस्जिद की ये टेंपल की फाउंडेशन भी मिली है क्या? टेम्पल की ही फाउंडेशन ये दिखा सकते हैं। ये जो हाँ, इसमें ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है इस लेवल से ऊपर, ये मस्जिद की फाउंडेशन, और ये मस्जिद की फाउंडेशन जो है यहाँ देखिए ये ख़त्म हो जाएगा और ये रेस्ट कर रहा है इस ब्रिक स्ट्रक्चर के ऊपर। मंदिर की फाउंडेशन पे, हाँ, मंदिर फाउंडेशन, मंदिर की वॉल पे इसका फाउंडेशन रेस्ट कर रहा है। इतना लोड लिया। अब यहाँ पे एक सवाल उठा, कोर्ट ने ये पूछा कि कोर्ट ने कहा कि ये तो मस्जिद की फाउंडेशन, ब्रिक की फाउंडेशन, तो उसके जवाब में वो हम तो उनको डायरेक्ट बात नहीं करते थे। तो जजेस ने मुझसे पूछा कि आप बताइए कि ये क्या ये फाउंडेशन मस्जिद की फाउंडेशन है। तो उस पर फिर मैंने उनको बताया कि नहीं, फाउंडेशन को कभी प्लास्टर नहीं किया जाता, हमेशा फाउंडेशन में टूटी ईंटें, पत्थर, ये सब चीज़ें डाल करके उसको कंसोलिडेट कर देते हैं, उसके ऊपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जो ऊपर का स्ट्रक्चर होता है उसको प्लास्टर करते हैं। यहाँ पे उसको प्लास्टर किया हुआ है, इसका मतलब ये फाउंडेशन नहीं है बल्कि ये मेन वॉल है। ये प्लास्टर के रिमेन्स बचे हैं। तो और मंदिर को सपोर्ट करने के लिए सारे ही डॉक्यूमेंट अब ये हाँ, ये सारे पिलर बेसिस हैं, और बीच में ये जो आप देख रहे हैं ये ग्रेव्स, जो कि जमीन से, हाँ, जमीन से मुश्किल से 10 सेंटीमीटर
15 सेंटीमीटर नीचे वेरी गिरी। रिसेंट होंगी। ये 1850 में वहाँ दंगे हुए थे हाँ तब और उन दंगों में जो लोग मारे गए थे, हनुमानगढ़ी और इस एरिया में हाँ, उनको जो तो वो मारे गए थे, तो मुस्लिम्स ने उनको वहाँ दफन कर दिया। और इसको वो लोग उर्दू में गंजे शहीदा कहते थे। तो ये गंजे शहीदा में ये कहते हैं कि 70 लोग मारे गए थे, तो उसमें उन्हीं लोगों की एक रेस। कितनी होंगी? उन लोगों को तो जो मिली थी 12-14 पूरा मिली ये होंगी, वही हाँ, जरा हाँ, बाकी और बाकी लोग भी उसमें दफना दिए गए होंगे, तो बाकी और भी रहे होंगे। तो ये इसका ये देखिए ये किलर बेसिस है। ये किलर बेस है, ये थोड़ा डेकोरेटेड है। तो आपको कितने दिन लगे इसमें आपकी खुदाई करने में? 5 महीने 5 महीने। और 5 महीनों में फिर आपने रिपोर्ट और बना साथ साथ रिपोर्ट भी बनाते रहे, जिससे साथ। 5 महीने के बाद 15 दिन में हाँ हमने रिपोर्ट सबमिट कर दी। सबमिट। और वहाँ पे सब पार्टीज के लोग होते थे, हाँ। सबके लॉयर्स? सबके लॉयर्स, सबके एक्सपर्ट्स। हाँ। कितने लोग होते होंगे वहाँ पूरा दिन में? दिन भर 20-25 लोग रहते थे। वहाँ बाकी सब आते जाते रहते थे कि उनका एक नहीं, वो बीच बीच में चेंज करते रहते थे। ड्यूटी? अब ये देखिए, ये एक मंदिर के अलग अलग पत्थर है। हाँ, ये ईंट है और उसका फाउंडेशन है ये नीचे। पहले नीचे पत्थर बिछाया गया है, उसके ऊपर फिर ब्रिक बैट्स वगैरह डाल दिए गए हैं और फिर ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया। ये मंदिर का है, मतलब मस्जिद के नीचे का है। अच्छा, अब इस लेवल से भी नीचे एक दूसरा कंस्ट्रक्शन था जो ये नीचे दिखता है, तो इससे ये लगता है कि यहाँ 2 मंदिर थे। मतलब एक मंदिर को दूसरे मंदिर के हाँ, ऊपर भी बनाया गया? वो हो सकता है एक मंदिर डिमोलिश हुआ, हाँ। और ये डिमोलिशन शायद 11th सेंचुरी में हुआ। 11th सेंचुरी की डिमोलिशन के बाद तुरंत बना दिया ये गया। दूसरा मंदिर बना दिया गया, जो उससे बड़ा बना है। जैसे अभी यहाँ उत्तरांचल में फ्लड आए थे, हाँ, तो ऐसे दोबारा से जल्दी से कंस्ट्रक्शन हो जाता है बिल्कुल। इस तरह से अच्छा, इसमें फिर एक इम्पोर्टेंट चीज़